गुड मॉर्निंग क्लास। सो हमने ये वाला कर लिया था, फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर। सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे, दैट इज बायो फर्टिलाइजर, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, सो नेम ऑफ बायो फर्टिलाइजर नंबर वन इज राइजोबियम and symbiotic. Here symbiotic means there is a relation between two things. Okay, so we can say there is a relation between fungi and algae. Fungi and algae. So here fungi provide the water to the algae, and algae provide the shelter to the fungi. So these are two mutually beneficial for each other. That means we can say rhizobium is in the symbiotic relation. Okay. Next is contribution. So what is a contribution of rhizobium? So it fixed the 30 to 100 kg nitrogen per hectare. If we put the rhizobium in the field, then it fixed 30 to 100 kg nitrogen per hectare, and it increased the yield by 10 to 30%. Okay, and it maintained the soil fertility. So contribution of rhizobium is it fixes the 30 to 100 kg nitrogen per hectare. Number two, leaves residue nitrogen increases yield by 10 to 30%. And number third is maintain soil fertility. Soil की fertility को क्या करेगा ये increase करेगा. So beneficiaries की बात करेंगे हम. So all legume exception राजमा, और लेग्यूम एक्सेप्शन राजमा में हम ये बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक डाउट आ जाता है, डेट इज सर व्हाई नॉट राजमा, हम राजमा को क्यों नहीं ले रहे हैं? सो राजमा क्या करता है, वो जो एक्सेस जो हम नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, राजमा क्या करता है उस नाइट्रोजन को अपटेक कर लेता है, उस नाइट्रोजन को अपटेक कर देता है और जमीन में नाइट्रोजन को कम कर देता है. इसलिए जो राजमा है, राजमा के अंदर हम राइजोबियम यूज नहीं करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एजिटोबैक्टर. सो एजिटोबैक्टर, a free living bacteria mostly found in neutral to alkyl soil. So it is not found in the acidic soil. ठीक है. So if I ask that which biofertilizer is not found in acidic soil, that is azotobacter. So if it is not found in the acidic soil, then it is found in the alkaline and neutral soil. So neutral soil pH is 7, and alkaline soil pH more than 7. More than 7. Okay. So next is it supply 20 to 40 milligram of carbon source. So azotobacter provide carbon, and carbon is a framework nutrient, or you can say that it is a structural nutrient, है ना? So carbon is a structural nutrient. So azotobacter is responsible for the structural nutrient. It provides the structural nutrient. How much? That is 20 to 40 milligram per gram. Okay. So next is performance of growth substance like vitamins, 10 to 15 increase in yield. So ग्रोथ की बात करें और विटामिन की बात करें और ओवरऑल यील्ड की बात करें हम, सो एजेटोबैक्टर डालने के बाद जो यील्ड होती है वो 10 to 15% इंक्रीज हो जाती है. ओके. सो इट मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी and control of plant disease, suppress plant pathogens. It suppress the plant pathogens. Okay. So beneficiaries इसके कहा कौन कौन से क्रॉप्स में है? So beneficiaries की बात करेंगे. So beneficiaries इसके हैं, number one is mustard, number two is sunflower, banana, sugarcane, grapes, papaya, watermelon, tomato, chili, okra, coconut, spices, and flower and plant. Okay, these are the main crop where azotobacter is provided as a beneficiary to the crop.
नंबर 2, यहाँ एक क्वेश्चन और फ्रेम हो रहा है कि मुझे पता है, मैंने बात की है that azotobacter not found in the not provide nutrient in the acidic soil, so that means these crops are not an acidic crop, है ना? So if I ask which of the following crops goes under the neutral or alkaline soil, so then I can put the option there and you have to choose the option. Okay, so remember these examples. Also remember the example of rhizobium. So rhizobium accept rajma like all legumes, and azotobacters may these are the examples. Next is azospirillum. It is also an biofertilizer, and its work is 20 to 40 kg nitrogen per hectare. So as we talking about, that rhizobium fix 30 to 100 kilogram per nitrogen per hectare, whereas azospirillum fixes 20 to 40 kilogram nitrogen per hectare. Okay, so if it is fixed the nitrogen, then it's result in increased minerals and water uptake. So इसके अंदर minerals और water uptake increase हो जाएगा, root development increase हो जाएगा, PGR, production, disease resistance and drought tolerance also beneficial additional benefit है azospirillum डालने के, ठीक है? इससे plant drought resistance हो जाएगा, disease resistance हो जाएगा. नंबर 3 इज क्या होगा इसमें, डिजीज रेजिस्टेंस हो जाएगा, ड्रोट रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो ड्रोट टॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है? दैट इज उसके अंदर पानी अगर ज्यादा खड़ा है या पानी उसमें ऊपर रह गया है, वो परकुलेट नहीं हो पा रहा है, तो जिससे क्या होगा, वहां पर उसे ड्रोट को टॉलरेट कर लेगा प्लांट, अगर हम एजोस्पाइरलम वहां पे डाल देते हैं तो, ठीक है? नेक्स्ट बेनिफिशियरीज rice, sugarcane, pearl millet, wheat, sorghum, etc. So these are the crops where we can use the azospirillum. Okay, because rice is a drought tolerant crop ना, अगर हमने उसको वाटर दे दिया है तो वहां पे पानी है खड़ा है, बट वहां पे अगर एक्सेस वाटर वहां खड़ा हो जाएगा, लाइक देखो अगर ये मेरे पास पूरी सीडलिंग है राइस की, ये मेरे पास सीडलिंग है राइस की, तो मैंने क्या किया, पानी तो दे दिया, बट पानी मैंने इसको यहाँ तक प्रोवाइड करना है, अगर वो एक्सेस वाटर हो जाएगा यहाँ तक, तो वो भी अगर हमने तब टॉलरेट करेगा राइस जब हमने उसमें एसोस्पाइरलम डाला होगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि वो उसके ड्रोट टॉलरेंस को क्या कर देता है, इंक्रीज, ठीक है? या बोल सकते हैं लॉगिंग को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना? या फिर सूखा पड़ रहा है, राइस के अंदर हम पानी दे रहे हैं, पानी कम पड़ जाता है, तो पानी कम पड़ रहा है तो उस टाइम पे हम एजोस्पाइरलम अगर डाल देंगे तो क्या होगा, वो पानी को ड्रोट टॉलरेंट बना देगा, किसको, इन क्रॉप्स को, ठीक है? तो उस केस में जो एजोस्पाइरलम अपना वर्क वहां पे करेगा. क्लियर है? नेक्स्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. सो ब्लू ग्रीन एल्गी fixes 20 to 30 kilogram nitrogen per hectare, and it result in increased mineral and water uptake. It also increase the mineral and water uptake. Also it produce the oxygen and GA3 मीन्स क्या है, ऑक्सीजन एंड गिबरलिक एसिड, ये प्रोड्यूस करता है क्या, ऑक्सीजन और गिबरलिक एसिड, जिसका मीन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, अपर जो हमारे शूट होती है उसकी डेवलपमेंट करता है, और जो गिबरलिन होता है हमारे रूट की डेवलपमेंट करता है. ये मान लो प्लांट है, प्लांट की जो शूट को डेवलप करेगा वो होगा ऑक्सीजन, और जो रूट को डेवलप करेगा डेट इज गिबरलिन. क्लियर है अच्छे से? नेक्स्ट इज एजोला, और इसको हम डालते हैं राइस की क्रॉप में. सो अगर ब्लू ग्रीन एल्गो को हमने राइस की क्रॉप में डाल दिया, सो उसका ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसका ऑक्सीजन भी अच्छा चलेगा, उसकी ग्रोथ शूट प्रमोट भी अच्छी होगी, रूट प्रमोशन भी उसका अच्छा होगा. नेक्स्ट इज एजोला. नाउ एजोला इज fixes 40 to 100 kg nitrogen per hectare. So azolla also fixes 40 to 80 kilogram nitrogen per hectare. It also play an green manure because it produces large mass. It produces large mass. Then we can say it play an role as a green manure and beneficiaries as rice. Clear है अच्छे से? So हम next मूव करते हैं. नेक्स्ट इज फोस्फेट सोल्यूबलाइजिंग फैक्ट्री बायोफर्टिलाइजर. पहले हमने नाइट्रोजन के पढ़ लिए हैं, है ना?
अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे ऑन द फॉस्फेट solubilizing biofertilizer. So group of beneficial bacteria capable of hydrolyzing organic and inorganic phosphorus from insoluble, one second guys. So हम बात कर रहे थे phosphate solubilizing biofertilizer. So group of beneficial bacteria capable of hydrolyzing organic and inorganic phosphorus from insoluble compound. हमने पहले क्या नाइट्रोजन वाले पढ़े, अब फॉस्फोरस पढ़ेंगे. इसमें भी हम क्या देंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉस्फोरस हमें मिलेगा. ठीक है. सो इसके कुछ एग्जांपल्स गिवन है नीचे. दैट इज सुडोमोनास, बैसिलस, राइजोबियम आर द मोस्ट पावरफुल इनोकुलेशन ऑफ पीएसबी. पीएसबी का मतलब क्या है, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर. ठीक है, phosphorus solubilizing biofertilizer, that means PSB. So it is a very important term. That what is PSB? So P stand for phosphorus solubilizing biofertilizer. Okay, and it provide 30 kg P2O5 per hectare. अगर हम सूडोमोनास डाल देते हैं, बैसिलस डाल देते हैं और राइजोबियम उसके अंदर आगे ऐड कर देंगे. देखो अब राइजोबियम यहाँ पे हमने डाल दिया, तो राइजोबियम ऑल्सो फिक्स द नाइट्रोजन, है ना. सो इट ऑल्सो फिक्स द नाइट्रोजन टू द एक्सटेंट ऑफ 30 to 100, है ना. सो 30 to 100 नाइट्रोजन फिक्स कर देगा. उसके बाद जो पीएसबी होता है, पीएसबी फॉस्फोरसिंग सोल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर, सो इट प्रोवाइड 30 किलोग्राम P2O5 per hectare. That means we can say it provide 30 kilogram of phosphorus. Okay. Next, mycorrhiza. So what is mycorrhiza? A symbiotic, generally mutualistic association between fungus and roots of vascular plant. सिंपल सी बात है, लाइक मैंने स्टार्टिंग में बात की है कि फंगस और एल्गे, फंगस और एल्गे के बीच में क्या होता है, सिम्बाइसिस होता है. सिम्बाइसिस का मीन क्या है, उनके बीच में एक रिलेशन. म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, अगर एक है एक दूसरे को फायदा देगा, दूसरा पहले को फायदा देगा. ठीक है, और दोनों आपस में होंगे तभी वो वर्क करेंगे. अगर फंजाई है तो फंजाई सर्वाइव नहीं कर पाएगी, एल्गे है तो एल्गे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और दोनों साथ में होंगे तो दोनों का रिलेशन होगा, और दोनों का रिलेशन होगा डेट मीन्स क्या होगा, वहां पे उनका एसोसिएशन होगा. एसोसिएशन होगा तो वहां पे उनका कंबाइन इफेक्ट वहां पे आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द फंगस कोलोनाइज द होस्ट प्लांट रूट. जो फंगस है वो कोलोनाइज हो जाता है किसके, होस्ट प्लांट रूट के अंदर. मान लो मेरे पास ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं. ठीक है. सो फंगस क्या करेगा, यहाँ पे कॉलोनी बना लेगा, छोटी छोटी कॉलोनी बना लेगा. ठीक है. आइदर इंटरसेलुलरी एंड एक्स्ट्रा सेलुलरी, या तो अंदर भी जा सकता है इसके फंगस, प्लांट के सेल के अंदर भी, या फिर प्लांट के बाहर भी. दिस एसोसिएशन प्रोवाइड द फंगस विद एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये क्या करता है, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के साथ एक्सेस करता है, और वहां से कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, एसोसिएशन करता है. ठीक है. बदले में क्या देता है प्लांट को, बदले में उसकी वाटर कैपेसिटी और मिनरल एब्जॉर्बिटिव कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है. अगर हमने माइक्रोराइजा डाल दिया तो क्या कर देगा, वो इसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा. अब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा, दैट मींस क्या, प्लांट इजीली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा. प्लांट इजीली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट मींस क्या, वो इजीली वहां से ग्रो कर जाएगा. क्लियर है अच्छे से. Next is plant root alone. Plant root alone may be incapable of taking up phosphate ion that are determinized in soil with a basic pH. देखो अगर फोस्फेट आयन हम डालेंगे, पीएसबी डालेंगे, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये करेगा वहां पे फोस्फेट आयन बनाएगा, जिससे उसका पीएच भी क्या होगा, बेसिक होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द माइसीलियम ऑफ माइक्रोरेजल फंगस कैन मेक देम अवेलेबल टू द प्लांट and colonize mycorrhizal and non-mycorrhizal barley plant after colonization with
कोकिलोबोलस टाइवर्स, कोगल और जिनसेन न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट स्ट्रेस रेजिस्टेंस बेनिफिट फॉर द बोथ पार्टनर। देखो अगर हमने बार्ले के अंदर एक तो हमने माइक्रो रेजल किया और एक नॉन माइक्रो रेजल किया, तो अगर जिसमें माइक्रो रेजल किया होगा वो क्या करेगा, वहां पे न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रेस को कम कर देगा, और अगर वहां पे कम कर देगा तो दोनों के लिए उसके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ओके, नेक्स्ट इज सिलिकेट एंड जिंक सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, सो सिलिकेट एंड जिंक सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर क्या है, microorganisms are capable for degrading silicate and aluminium silicate। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैपेबल होते हैं डिग्रेड करने के लिए सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट्स को। ठीक है, लाइक बैसिलस स्पीसीज कैन बी यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर फॉर द जिंक। if we use the bacillus species as a biofertilizer, then it can degrade the zinc or aluminium silicate, because these organisms solubilize the zinc present in the soil। so these bacteria क्या करते हैं, जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो सोल्यूबलाइज कर देते हैं जिंक वाले, जो जिंक को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है ना, उसको उसमें सोल्यूबलाइज कर देते हैं किसके अंदर, सोइल के अंदर। ठीक है, next is plant growth promoting rhizobacteria। so pgpr is a silicate and zinc solubilizing biofertilizer। so याद रखना है यहाँ पे psb क्या है, phosphorus solubilizing bacteria, and pgpr क्या है, plant growth promoting rhizobacteria। species of pseudomonas and bacillus can produce पाइथोहॉर्मोन्स और ग्रोथ प्रमोटर। जो सूडोमोनास और बैसिलस स्पीसीज दोनों हैं वो क्या करती है, पाइथोहॉर्मोन रिलीज करती है, या फिर बोल सकते हो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं ये दोनों। ठीक है, दे प्रोड्यूस इंक्लूड इंडोल एसिडिक एसिड। ये इंडोल एसिडिक एसिड को भी प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकिनिन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, गिबरलिन को प्रोड्यूस करते हैं, और इनहिबिटर ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन भी है। अब देखो, अब इन सब की बात करते हैं, तो गिबरलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन प्रोडक्शन। साइटोकिनिन क्या करेगा, रूट की फॉर्मेशन करेगा, गिबरलिन क्या करेगा, रूट की फॉर्मेशन, शूट की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सो इनहिबिट द इथाइलिन प्रोडक्शन। प्रोडक्ट इथाइलिन क्या होता है, जब फ्रूट पकने वाला होगा तो इथाइलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, जिससे फ्रूट अच्छे से ही पक जाएगा। क्लियर है अच्छे से ये सब यहाँ तक? ठीक है क्लास। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा मेथड ऑफ बायो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। सो हम पढ़ चुके हैं कि फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया कौन से होंगे, नाइट्रोजन सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर कौन से होंगे, जिंक और एल्यूमिनियम सिलिकेट वाले कौन से होंगे। सो उसके बाद अब हम इनको अप्लाई कैसे करना है। सो इनको अप्लाई करने के लिए नंबर 1 इज ब्लू ग्रीन एल्गे। सो ब्लू ग्रीन एल्गे राइस में हम इसको यूज करते हैं। इसके सोइल एप्लीकेशन होते हैं 4 kg एल्गल कल्चर। हम 4 kg एल्गल कल्चर डालेंगे एट द 7 डे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। जब 7 दिन हो जाएंगे ट्रांसप्लांटिंग के, तब हम ब्लू ग्रीन एल्गे कल्चर वहां पे डाल देंगे। नेक्स्ट एजोला। एजोला भी हम राइस के अंदर डालते हैं, हमने पढ़ा कि ये भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। सो एज अ ग्रीन मैन्योर 4 टन पर एकड़, 4 टन पर एकड़ डालेंगे हम इसको। ठीक है, एट प्लांटिंग टाइम पे एज ड्यूल क्रॉप इंटर क्रॉप 400 to 500 किलोग्राम पर एकड़। अगर वहां पे ड्यूल क्रॉप है, देखो अगर हमने एज अ ग्रीन मैन्योर डालना है तो वहां पे 4 टन पर एकड़ डाल दो, बट अगर हमें क्या करना है, वहां पे इंटर क्रॉप करना है, ड्यूल क्रॉप करना है, तो हम वहां पे क्या कर देंगे, 400 से 500 किलोग्राम पर एकड़ वहां पे डाल देंगे एट 7 डे एट ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे। ठीक है, नंबर 3 इज राइजोबियम। अब राइजोबियम सभी लेग्यूम्स के अंदर यूज होता है, जितनी भी लेग्यूम्स क्रॉप है। ठीक है, इसके अंदर ट्रीटमेंट सीड और सोइल एप्लीकेशन। क्लियर है। नेक्स्ट इज एजेटोबैक्टर एंड एसोस्पाइरलम। इनको हम ऑल नॉन लेग्यूम्स में लगाते हैं। नॉन लेग्यूम के अलावा जितनी भी क्रॉप हम उसके अंदर लगाते हैं, लाइक पोटैटो, शुगर केन, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा। सीडिंग, रूट टिपिंग, वेजिटेबल फ्लावर, दोज आर ट्रांसप्लांटेड। ओके, जिन्हें हम ट्रांसप्लांट करेंगे उसकी रूट को डिप करके हम उसकी सीडिंग को
लगाएंगे एजेटो वेक्टर के अंदर। क्लियर अच्छे से। नेक्स्ट इज पीएसएम, फॉस्फोरस सोलुबलाइजर माइक्रोऑर्गेनिज्म, और लेग्यूम्स एंड नॉन लेग्यूम। सो इसको हम सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, और सीड ट्रीटमेंट मटेरियल फॉर पोटैटो, शुगर केन, स्वीट पोटैटो होता है। सीडिंग, रूट टिप डिपिंग, वेजिटेबल फ्लावर को अगर ट्रांसप्लांट करना है तो इसमें डिप करके लगाओ, और सोइल एप्लीकेशन हम इसकी कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे कल। टिल देन टेक केयर, बाय।